हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इन माय प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि असाइनमेंट प्रॉब्लम हमने किस तरह से सॉल्व करी, बट वो जो एग्जाम्पल मैंने लिया था उसमें हमने हंगेरियन मेथड के सारे स्टेप्स कवर नहीं हो पाए थे। तो आज जो मैं एग्जाम्पल लूँगी उसमें हम हंगेरियन मेथड के सारे स्टेप्स कवर करेंगे, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन which requires all the steps of Hungarian method, which is assignment problem. Okay, and it is minimization assignment problem. Now you can see this matrix 5 by 5 matrix. अब जो ये मैट्रिक्स है इसमें रोमन नंबर 1 2 3 4 5 दे आर रिप्रेजेंटिंग मशीन्स, PQRST these are representing jobs. एंड ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं, these numbers are nothing but प्रोसेसिंग टाइम। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि दिस 17, ये 17 इज द प्रोसेसिंग टाइम फॉर जॉब एस ऑन मशीन 4 एंड टाइम इज गिवन इन मिनट्स। टाइम इज गिवन इन मिनट्स and this is minimization assignment problem. We want to find total minimum time which is required to complete all the jobs on the machines. So in order to find that, सबसे पहले हम लोगों ने find out करना होता है optimal assignment schedule। मतलब कौन सी जॉब किस मशीन को असाइन होगी so that जो टोटल टाइम हमें मिलेगा वो मिनिमम होगा। तो मिनिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम मतलब हमारे माइंड में आना चाहिए कि हंगेरियन मेथड। तो हंगेरियन मेथड यूज करना होता है, मतलब मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होनी चाहिए। और एक और चीज, जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब हम क्या करते हैं, दैट इज द डिफरेंट केस विच विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियोस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट कैन बी डन हियर। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होता है। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं कि हर एक रो में से वी सिलेक्ट द लीस्ट एलिमेंट, मिनिमम नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो if you will observe row number 1 5 is the smallest, in second row 6 is the smallest, in third row 2 is the smallest, in fourth row 9 is the smallest, and in last row 6 is the smallest. अब ये जो नंबर स्मॉलेस्ट हमने सिलेक्ट किया है फ्रॉम ईच रो के एलिमेंट्स में से इस नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है एंड शॉर्ट में हमने ये स्टेप यहाँ पर मेंशन करना है। तो इस स्टेप को हम नाम देते हैं रो रिडक्शन। सो रो रिडक्शन में we will be selecting a least element from each row and that element will be subtracted from the elements of that respective row. So let's see what resultant matrix we will get. जो भी resultant matrix हमें मिलेगी वो हम लिखेंगे with the row reduction step. So as you know that P, Q, R, S, T are the jobs and 1 2 3 4 5 are the machines. So देखो, अगर आप फर्स्ट रो में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 5 0 4 13 6। दिस इज द फर्स्ट रो। सिमिलरली नेक्स्ट रोज भी हम लिखेंगे। यहाँ पर सेकेंड रो में 6 इज द लीस्ट, सो 6 विल बी सब्ट्रैक्टेड। So 7 3 0 6 8, this is the second row. Third row में 2 is the least, so 5 0 2 2 3, this is the third row. Next row will be 9 0 3 8 6, and last row में 6 will be subtracted, 5 0 8 13 and 4. So this is the matrix which we will get after following row reduction. Now whatever we did for rows, same thing will be done for columns, and that is called column reduction. This is step number 2, जिसको कि हम बोलते हैं column reduction. तो column reduction में हम क्या करते हैं, हर एक कॉलम में से लीस्ट एलिमेंट सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में लीस्ट एलिमेंट इज 5, second column least element is 0, so second column will remain same because if 0 is subtracted from any number, that number remains same. So second and third column same रहने वाला है। fourth column में 2 is the least and in fifth column 3 is the least. So like this we'll follow column reduction and we'll get resultant matrix.
So we'll be writing the matrix, reduced matrix, which we will get after column reduction. So now first column will be, when 5 will be subtracted, it will be 0, 2, 0, 4, 0. Second column will remain same. Third column is also same because 0 is the least element in both the columns. In fourth column 2 is the least, तो जब आप 2 subtract करेंगे इस column में से, so it will be 11, 4, 0, 6, 11. And fifth column में 3 is the least, so 3, 5, 0, 3, 1. So this is what we will get after following row reduction and column reduction. ये पहले दो steps होते हैं Hungarian method के. Now next step is for this matrix only, that is जो हमको column reduction के बाद मिली हुई है matrix, इसी matrix में we will be drawing, हम draw करेंगे, draw minimum number of lines covering all zeros. This is the third step, जहां पे हमने हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है सो दैट ये सारे जीरोस कवर हो. बट एक बात हमने ध्यान रखनी है कि जो हमने लाइंस ड्रॉ करनी है वो मिनिमम होनी चाहिए. ओके, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से हम लोग ये जीरोस को कवर करेंगे. एंड जो लाइंस ड्रॉ करनी है वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, नॉट डायगोनल. डायगोनल लाइंस आर नॉट अलाउड हियर. सो देखिए इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है कि आप सबसे पहले देखिए कि सबसे ज्यादा जीरोस कहाँ पर है. तो इफ यू विल ऑब्जर्व सेकेंड कॉलम में देर आर 4 जीरोस. तो सबसे पहले हम ये 4 जीरोस को कवर करने वाली एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं. उसके बाद आप देखिए कि और इससे कम जीरोस या इतने ही जीरोस है कहीं पर. तो ये अगर आप फर्स्ट कॉलम देखोगे तो यहाँ पर है 3 जीरोस, तो एक लाइन से हम इसको कवर कर सकते हैं. इसके बाद यहाँ पे थर्ड रो में 2 zeros are there. So if we'll draw a line along the third row, then these 2 zeros will be covered. And last में सिर्फ ये एक जीरो बचा है, which can be covered by drawing vertical line along third column और horizontal line along second row. आप किसी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट मिनिमम होनी चाहिए. Now if you will observe, minimum number of lines जो है वो है 4, right? And order of matrix जो है, there are 5 rows and 5 columns, तो order is 5. मतलब number of lines is less than order of matrix. तो जब ऐसी तरह की कोई कंडीशन होती है मतलब हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला है, अभी तक हम असाइनमेंट नहीं कर सकते, राइट? सो व्हेन दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू गेट कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इज लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तब हंगेरियन मेथड का नेक्स्ट स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं. एंड दैट इज स्टेप नंबर 3. इट इज सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट या नंबर भी आप बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम the uncovered elements, subtracted from the uncovered and add it to the intersection. This is the step which we will follow. एंड ये स्टेप हमने कब फॉलो करना है, जब हमें इस तरह की कुछ कंडीशन मिलती है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस जो हमने ड्रॉ किए हैं दैट इज लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तब हम ये स्टेप फॉलो करते हैं. अगर हमें ये इक्वल मिल जाता है, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उस केस में ये स्टेप हम फॉलो नहीं करते हैं. उस केस में हम डायरेक्टली असाइनमेंट शुरू करते हैं कि किस तरह असाइनमेंट, क्या किसको कौन सी मशीन को कौन सी जॉब असाइन होगी. ओके, बट यहाँ पर ये
कंडीशन मिलने की वजह से स्टेप नंबर 3 विल बी फॉलोड. सो सी नाउ इन दिस मैट्रिक्स जहां पे हमने लाइंस ड्रॉ करी है, अनकवर्ड मतलब जहां पर आपको लाइंस नहीं दिख रही होंगी, जो अनकवर्ड है उसमें से हम लीस्ट एलिमेंट स्मॉलेस्ट नंबर सिलेक्ट करते हैं, और इस केस में दैट स्मॉलेस्ट नंबर इज 1. So now what we will be doing with this smallest number, we will be subtracting this smallest number from the uncovered and intersection. देखिए यहाँ पर ये intersection है, ये at these 3 places intersection is there. तो जहां पे intersection है वहां पे ये 1 add होगा, और जो uncovered है वहां पे ये element subtract होगा, एंड जहां पर ये lines आपको दिख रही है covered है वहां पे कुछ भी नहीं होगा. So what we will get is that we will write as an resultant matrix. So 1 will be subtracted from uncovered and added to the intersection. तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट रो में 0 0 4 will remain same because they are covered with lines. Now 11 and 3 are uncovered, तो 1 will be subtracted. So ये बन जाएगा कुछ इस तरह से 10 and 2. This is how first row will become. Now second row में 2 3 0 as it is because these elements are covered. 4 5 are uncovered, so 1 will be subtracted. So 3 4. Now 0 0 2, here if you will observe there is intersection, तो यहाँ पर हमने add करना है 1 को. So 1 1 3 0 0 will remain same. Again 4 0 3 ये same रहने वाला है because these are covered elements. Uncovered 6 3 में से 1 will be subtracted, and last row 0 0 8 will remain same. 11 में से 1 will be subtracted and 1 में से 1 will be subtracted. So this is what we will get. So this is the step of Hungarian method. Okay. Now next is, again we will draw minimum number of lines covering all zeros. So draw minimum number of lines covering all zeros. So जो भी स्टेप हम फॉलो करते हैं उसको हमें शॉर्ट में यहाँ पर मेंशन करना होता है. तो यहाँ पे हम अगेन लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो प्रोसीजर आपको पता है कि जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जीरोस दिख रहे हैं सबसे पहले उसको कवर करना है. तो इफ यू विल ऑब्जर्व सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे 3 जीरोस हैं, तो 3 जीरोस को कवर करने के लिए वी कैन ड्रॉ लाइन लाइक दिस. नाउ आफ्टर कवरिंग दीज 3 जीरोस, अगर आप ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट कॉलम या फिर थर्ड रो या फिर फिफ्थ कॉलम, यहाँ पे आपको 2 जीरोस दिखेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को कवर कर लीजिए. अब उसके बाद यहाँ पर 2 जीरोस है, तो ये थर्ड रो कवर हो जाएगी. अब देखिए ये जो 2 जीरोस बचे हैं, it is not possible to cover these 2 zeros with less than 2 lines because ये अलग अलग rows and columns में है. So one will be drawn vertical like this. आप horizontal भी draw कर सकते हैं, it is up to you, and second like this. Now if you will observe number of lines which we had drawn covering all the zeros is equal to order of matrix because both are equal to 5, which is equal to 5. तो जब ऐसी कंडीशन मिल गई मतलब optimal solution has reached. So optimal solution has reached मतलब अब हम असाइनमेंट कर सकते हैं. नाउ वी आर रेडी फॉर द असाइनमेंट. तो असाइनमेंट करने के लिए ये मैट्रिक्स हमें दोबारा लिखनी होती है. सो लेट्स राइट दैट मैट्रिक्स अगेन, and please be careful while adding and subtracting the numbers because when we are dealing with numbers, we tend to make mistake. So ये मैट्रिक्स को हम दोबारा लिखेंगे with same numbers and copy down all the numbers correctly. So इस तरह से now let's start with the assignment. अब देखिए जो असाइनमेंट का प्रोसीजर होता है, we proceed row wise. सबसे पहले हम row wise जाते हैं. अब सबसे पहली रो आप देखिए, यहाँ पर आपको 2 जीरोस नजर आ रहे हैं, तो लीव इट.
हम उस रो को ढूंढेंगे जहां पे सिंगल जीरो है. तो ये फर्स्ट रो में 2 जीरो है तो लीव इट. नाउ नेक्स्ट सेकेंड रो में इफ यू विल ऑब्जर्व देयर इज ओनली 1 जीरो. तो इस जीरो को हम इस तरह से बॉक्स में रखेंगे. अब ये जो जीरो है सेकेंड रो का जीरो थर्ड कॉलम में है. हम देखेंगे कि थर्ड कॉलम में और कोई जीरो है कि नहीं है. अगर थर्ड कॉलम में और कोई जीरो होता तो भी हम लोगों ने उसको क्रॉस कर दिया होता, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है तो विल proceed. Now third row में again 2 zeros are there, so leave it. Fourth row में there is single zero. See, fourth row contains single zero, so put it in a box. Now this zero is in second column, so in second column there are 2 more zeros, so we will be crossing them like this. Now next row, that is last row में 2 zeros are there, so leave it. Now whatever we did for rows, same thing will be done for columns. Will see first column whether it contains single zero, no, so there are 2 zeros, so leave it. Second column mein it is being already assigned, so leave it. Third column mein also zero is assigned, so leave this also. Now if you will observe fourth column there is single zero, this is the single zero, put it in a box. Now this zero is in third row. इस रो में अगर और कोई जीरो दिख रहा है तो उसको हम क्रॉस कर देंगे लाइक दिस. सो ये हो गया फोर्थ कॉलम के साथ. नाउ फिफ्थ कॉलम में भी देखिए सिंगल जीरो आ गया, ये क्रॉस हो चुका है, तो दिस विल बी इन अ बॉक्स. अब ये जीरो जो है ये फिफ्थ रो में है, इस रो में एक और जीरो दिख रहा है तो उसको हम कर देंगे क्रॉस. अब देखिए असाइनमेंट अब तक पूरा हुआ नहीं है, तो पहले हम रो फिर कॉलम, अब हम फिर से रो वाइज देखते हैं. अब देखिए फर्स्ट रो में ये जीरो बच गया है एंड दिस इज अ सिंगल जीरो बिकॉज बाकी का क्रॉस हो चुका है, तो दिस विल बी पुट दिस, इसको हम इस तरह से बॉक्स में रख देंगे. अब देखिए हर एक रो एंड कॉलम के लिए असाइनमेंट हो गई है. नाउ वी विल राइट ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल. सो ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल इज, अब देखिए जो हम ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल लिखते हैं उसके लिए हम 3 कॉलम्स बनाते हैं. 3 कॉलम्स कहाँ से आएंगे? फर्स्ट कॉलम आएगा जॉब्स का, जॉब्स. सेकेंड कॉलम मशीन्स एंड थर्ड कॉलम जो होता है वो होता है ये नंबर्स के लिए. तो ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दीज नंबर्स रिप्रेजेंट्स टाइम एंड योर टाइम इज गिवन इन मिनट्स. सो इस तरह से 3 कॉलम्स बनाते हैं. अब ये बनाने के बाद जो जॉब्स का सीक्वेंस दे रखा है PQRST, वो हम एज इट इज लिखेंगे PQRST. अब ऐसा नहीं कि मशीन्स का सीक्वेंस भी हम एज इट इज लिखेंगे, तब इसका कोई मतलब नहीं है. नाउ वी विल सी दिस असाइनमेंट मैट्रिक्स जहां पे हमने असाइनमेंट करके रखी है. नाउ फॉर जॉब P, मशीन 1 के अंडर 0 इज इन बॉक्स, सो फॉर जॉब P machine 1 is assigned. For job Q, this third machine is assigned. For job R, fourth machine is assigned. For S, second machine is assigned. And for T, fifth machine is assigned. So ये हो गया आपका optimal assignment schedule. Now corresponding to each assignment, we will write time. And in order to write time, we need to refer our original matrix. सो ये जो जीरोस बॉक्स में है करस्पॉन्डिंग टू दैट जीरो, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है वो हमने लिखना है. तो यहाँ पर सबसे पहले है 10, देन नेक्स्ट इज 6, फिर उसके बाद है ये देखिए ये वाला फोर्थ, अंडर फोर्थ कॉलम विच इज 4, देन अंडर सेकेंड कॉलम विच इज 9 एंड फिफ्थ में इट इज 10. नाउ we will write total minimum time. Total minimum time. This assignment schedule will give you total minimum time. So iske liye we will be adding this, and if you will add these numbers you will get 39. And since these numbers are representing time, processing time, and it is in minutes, so you need to write unit also. यूनिट इज मस्ट. अगर मिनट में दिया हुआ है टाइम तो मिनट में लिखिए, आवर्स में दिया है तो आवर्स में लिखिए, और अगर कोई यूनिट नहीं दी हुई है तो यू जस्ट राइट 39 यूनिट्स. दैट्स इट. So this is how we solve any minimization assignment problem, and this is the question where all these steps of Hungarian method are covered. Okay, so thank you so much.